So we have just studied external parts of the cockroach body, right? Cockroach के body में जितने भी external parts हैं वो study किए, and that is called as morphology. Now we will just briefly revise those external parts, and then we will move on to next topic, anatomy of cockroach, means study of internal organs. पहले हम लोग external parts जो हमने already study किए वो revise कर लेते हैं brief में, and then we will move on to internal parts. Now when we talk about the external parts, we all know कि cockroach की जो body है, it is divided into 3 sections. What are those 3 sections? First section is head, and head contains 2 compound eyes, then antennae, and then mouth, right? Mouth, compound eyes, and antennae, 3 things. Compound eyes, antennae, and mouth. This is part of head. So this is the first section of the cockroach body. Second section हमने देखा था, उसको हमने बोला था thorax. Second section is called as thorax, and thorax is divided into 3 parts: prothorax, mesothorax, and metathorax. So this is thorax part. Now I will write this thorax over here. Thorax जो second part है, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का हमने देखा हेड पार्ट. ओके, नाउ thorax part में there are legs, 3 thoracic legs, right? And second thing in the thorax is wings. So one arising from mesothorax, one arising from metathorax. तो ये जो wing है ये थोड़ा डार्क कलर का होता है, which is called as tegmina, and it is called as forewing. Right, fourth wing, and second wing which arises from metathorax is called as hind wing. Right, ये जो wing है ये पूरे cockroach के body को cover करता है ये wing, और ये wing flight उड़ने में help करता है ना, flight में, and ये cover करता है, cover, right? And ये dark color का होता है, this is light color, transparent, this is rather transparent. Now third part of the third section of the cockroach body is this abdomen. This part is called as abdomen. Now this जैसे thorax 3 section में divided है, वैसे abdomen is divided into 10 segments, right? These are the 10 segments. और यहाँ पे there is a portion called as anal cerci, right? This part is called as anal cerci, and यहाँ पे 1, 2, 3, 10 segments है abdomen. और जो cockroach की full body है, it is covered by chitinous exoskeleton. इसकी body के ऊपर chitin का exoskeleton है, tough, एक hard covering होता है इसके पूरे body में. ये जो segments है, अगर हम इसको वेंट्रल है, वेंट्रल साइड कॉकरोच को उल्टा देखें, जैसे कॉकरोच इसको उल्टा कर दिया तो स्टर्ना, स्टर्नाइस, और ऐसे ऊपर से देखते हैं कॉकरोच को तो वो डॉर्सल साइड उसकी टर्गा या फिर टर्जाइस. तो ये यहाँ पे जो सेगमेंट्स है दे आर कॉल्ड एज स्टर्ना, स्टर्नाइस, और यहाँ जो सेगमेंट्स है दे आर कॉल्ड एज टर्गा और टर्जाइस. तो दीज सेगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, राइट? नाउ लास्टली व्हाट वी हैव सीन, यहाँ पे एब्डोमेन में अगर फीमेल है तो 7, 8, 9 में उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्रूड पाउच है, अगर मेल है तो 9th और 10th सेगमेंट में उसका ब्रूड पाउच है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सटर्नल थिंग्स, एंड देयर इज अ डायग्राम 7.14 that you have to draw. This diagram you are not supposed to draw in diagram copy. Diagram copy में 7.14 draw करो, and external study is done now. Now we will move on to anatomy of cockroach, that is study of internal organs. Anatomy means internal organs. जब हमको study करने cockroach के, तो very first internal organ we are going to study is alimentary canal. Now alimentary canal is related to digestive system that you people very well know. Alimentary canal का मतलब ही क्या होता है? digestive system होता है. So first system, first internal organ of cockroach we are going to study is alimentary
कैनाल एंड एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम. एलिमेंट्री कैनाल इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सो when we talk about digestive system, थोड़ा सा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिकलेक्ट करो. आवर डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आवर एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विथ माउथ. माउथ के बाद इसोफेगस, एक्चुअली माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एनस. सो दिस वाज आवर एलिमेंट्री कैनाल, राइट. बट हम कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल अभी स्टडी करने जा रहे हैं. तो कॉकरोच इज वेरी स्मॉल एनिमल. तो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल ऑब्वियसली हमारे एलिमेंट्री कैनाल जैसा नहीं रहने वाला है, राइट. सो लेट अस स्टडी एलिमेंट्री कैनाल. एक मैं ऐसे बॉर्डर कॉकरोच, आई विल ड्रॉ दिस लाइक दिस एंड हम लोग ये दिस इज कॉकरोच, इमेजिन दिस इज कॉकरोच. हम इसका इंटरनल पार्ट देख रहे हैं. ओके, सो एलिमेंट्री कैनाल जैसे हमारा माउथ से शुरू हुआ था वैसा कॉकरोच का भी यहाँ पे इट स्टार्ट विथ माउथ. ओके, एंड देन माउथ के बाद एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं फैरिंग्स. ओके, फैरिंग्स. फैरिंग्स के बाद एक पाइपलाइन है विच इज कॉल्ड एज इसोफेगस. ओके, सो माउथ, देन फैरिंग्स, देन इसोफेगस. तो ये जो कॉकरोच है, ये कॉकरोच इज ईटिंग फूड. तो सबसे पहले फूड विल कम टू माउथ, देन इट विल मूव टू फैरिंग्स, देन इट विल गो टू इसोफेगस, राइट. देन इसोफेगस के बाद यहाँ पे एक ऐसा बैग है. ओके, बैग, एंड दिस बैग इज कॉल्ड एज क्रॉप. ठीक है, क्रॉप. एंड दिस क्रॉप, ये क्रॉप का काम है स्टोर फूड, फूड को स्टोर करना, स्टोर्स फूड. तो कॉकरोच जो भी फूड इंजेस्ट करता है यहाँ से माउथ से, दैट फूड गोज टू माउथ, फैरिंग्स, इसोफेगस एंड देन इट कम्स हियर और यहाँ पे फूड स्टोर होता है. ओके, देन इसके बाद वाला पार्ट है ये, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज गिजार्ड. ओके, एंड दिस इज वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ द कॉकरोच, क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्ट है इसके दो लेयर्स है. ये जो बाहर है वो थिक है, थिक. ओके, मसल से बना है, सर्क्यूलर मसल्स, सर्क्यूलर मसल्स. आउटर साइड, ठीक है, आउटर साइड में सर्क्यूलर मसल्स है और अंदर की तरफ क्यूटिकल नाम का सब्सटेंस है. ओके, अंदर की तरफ ये क्यूटिकल नाम का लेयर है, क्यूटिकल. सो सी, यू कैन सी डबल लेयर, दिस इज वन लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर. तो ये जो सेकेंड लेयर है वो क्यूटिकल है. हम सबको पता है क्यूटिकल इज हार्ड सब्सटेंस बोल सकते हो, इनर. ओके, नाउ दिस आई विल ड्रॉ, थोड़ा मैं ब्रॉड ड्रॉ करती हूँ इसको, क्योंकि देर इज समथिंग वेरी स्पेशल हियर. सो जैसे ये आउटर लेयर है इसका मसल्स का एंड ये इनर लेयर है क्यूटिकल का. ओके, अब यहाँ पे ऐसी प्लेट्स है. ओके, यहाँ पे देखो प्लेट्स दिख रही है अंदर. सो ये जो है देर आर 6 प्लेट्स. ओके, और ये जो प्लेट्स है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 प्लेट्स दिख रही है, ये प्लेट्स को आप टीथ भी बोल सकते हो. 6 टीथ, मतलब जैसे हमारे टीथ हमारे माउथ में है, वैसे कॉकरोच के टीथ यहाँ माउथ में नहीं है. यहाँ पे सिर्फ उसकी टंग है, हमने देखा था, हाइपोफैरिंग्स. एंड यहाँ पे कहीं पे भी टीथ नहीं है और उसके टीथ यहाँ है. मतलब अगर फूड को चीव करना है तो यहाँ चीव होगा फूड, राइट. सो 6 टीथ बोलो या फिर 6 प्लेट्स बोलो. और ये जो
प्लेट्स या फिर टीथ है ना, ये 6, ये बनी है चाइटिन से। चाइटिन बहुत हार्ड सब्सटेंस है, ओके, हार्ड सब्सटेंस, ओके। सो वी हैव सीन एलिमेंट्री कैनाल का इनिशियल पार्ट देखा हमने, विच इज पहले फर्स्ट कम्स माउथ, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन क्रॉप। और ये जो रीजन है ना क्रॉप के बाद वाला, ये जहाँ पे ये है, टीथ बोलो, प्लेट्स बोलो, चाइटिन की प्लेट्स है, यहाँ पे फूड चीव हो रहा है, इसको गिजार्ड बोलते हैं, या फिर और एक नाम है इसका प्रोवेंट्रिक्यूलस। हाँ, ये याद रखना है, प्रोवेंट्रिक्यूलस। और ये जो पार्ट है, ये दो लेयर है, देखो, आउटर पार्ट सर्कुलर मसल से बना है और इनर पार्ट क्यूटिकल से है। नाउ ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है ना, पूरे एलिमेंट्री कैनाल अंदर से, पूरा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में अंदर से लाइनिंग होता है क्यूटिकल का, ओके, क्यूटिकल का लाइनिंग है, ओके, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में, ओके। सो हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव सीन टिल नाउ? Mouth, then pharynx, then esophagus, then crop, then gizzard, which is the fifth part. And gizzard में क्या क्या है, what is there inside the gizzard? We have seen gizzard में 2 layers है, outer circular muscles, inner cuticle, और gizzard के अंदर teeth है, उसके 6 teeth बोलो या फिर 6 plates बोलो, जो चाइटिन से बनी है, ओके। तो ये जो फूड खाएगा, फूड इंजेस्ट करेगा, वो यहाँ पे नहीं होगा चीव, यहाँ पे होगा, माउथ में नहीं होगा, यहाँ पे होगा गिजार्ड के अंदर चीव। एंड आफ्टर द गिजार्ड यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है अभी तक हमने देखा 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है, और ये फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फोरगट, ओके, फोरगट। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कॉकरोच का, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, 3 रीजन में डिवाइडेड। अभी हमने पहला रीजन देखा है, फर्स्ट रीजन देखा है, जिसको बोलते हैं फोरगट। और फोरगट के हमने हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इनसाइड द फोरगट? ये यहाँ से यहाँ तक पूरा फोरगट है। एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? माउथ, pharynx, esophagus, crop and gizzard. 5 parts are there in the foregut. Now इसके बाद शुरू होता है midgut, ओके। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा सेक्शन शुरू होता है। तो यहाँ पे है, ये दूसरा सेक्शन है जिसको वी कैन कॉल सेकेंड सेक्शन या फिर midgut, ओके, midgut. That we are going to study now in detail, but फोरगट और मिडगट के बीच में यहाँ पे ना जंक्शन बोल सकते हो आप, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? फोरगट है, नीचे वाला पार्ट क्या है? मिडगट है। तो बीच में जो जंक्शन है यहाँ पे देयर आर ऐसी ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब नहीं बोल सकते, देयर आर ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हिपैटिक सीके, ओके। ये ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स है जिनको आप ट्यूब्यूल्स बोल सकते हो, और ब्लाइंड है, इधर से ओपन है, यहाँ से क्लोज है, देखो यहाँ से क्लोज है। तो एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज अगर है ना, उसको ब्लाइंड बोलते हैं। तो दे आर 6 to 8 ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब मैंने अभी बताया, एक साइड से ओपन है, क्लोज है, एक साइड से ओपन है। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स मतलब छोटी छोटी ट्यूब्स। और ये जो हिपैटिक सीके है ना, ये सिक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूसेस फूड के ऊपर। ये जो यहाँ पे अभी फूड यहाँ अचीव हो जाएगा, फिर फूड विल कम हियर, तो फूड के ऊपर ये सिक्रेट करेगी डाइजेस्टिव जूसेस, ओके। तो हमारे बॉडी में जैसे पैनक्रियाज, लीवर है, बाइल डक्ट है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करने के लिए ऑर्गन्स है ना, पैनक्रियाज, हमने देखा लीवर है जो बाइल जूस सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करता है।
वैसे इसके पास ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं है जूस सिक्रेट करने के लिए, तो ये हिपैटिक सीके जो होते हैं वो फूड के ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं एंड फूड गेट्स डाइजेस्टेड। तो हिपैटिक सीके जो है वो जंक्शन है बिटवीन, ये वाला जो पार्ट है वो फोरगट है और उसके नीचे वाला बाद वाला पार्ट मिडगट है। तो इट इज बिटवीन फोरगट एंड मिडगट। जहां पे फोरगट खत्म होता है और जहां से मिडगट शुरू होता है वहां पे क्या, अगेन रिवाइज फोरगट, फोरगट को रिवाइज करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू मिडगट। तो फोरगट में हमने क्या क्या देखा? फोरगट देयर वाज अ माउथ, राइट, माउथ, देन माउथ के बाद फारिंग्स, देन फारिंग्स के बाद दिस इज esophagus, then comes crop, right, then there is gizzard. Gizzard is also called as proventriculus, right, और यहीं पे उसके टीथ होते हैं ना कॉकरोच के, देर आर 6 टीथ प्रेजेंट। दिस स्टोर्स द फूड, दिस मूव्स द फूड, माउथ से फूड इनटेक करेगा, फेरिंग्स में जाएगा फूड, देन इट विल कम टू इसोफेगस, देन फूड विल कम टू क्रॉप, देन फूड विल कम टू गिजार्ड, एंड आफ्टर गिजार्ड यहाँ तक का जो पार्ट है ना, ये दिस गट, दिस इज कॉल्ड एज फोरगट या फिर प्रोजेंटेरॉन भी बोलते हैं, इसको याद रखना, प्रोजेंटेरॉन, ठीक है। फोरगट बोलो या फिर प्रोजेंटर, क्योंकि प्रो मतलब फर्स्ट होता है, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, इसलिए प्रोजेंटेरॉन या फिर फोरगट। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है दैट इज मिडगट। जैसे फोरगट इज कॉल्ड एज प्रोजेंटेरॉन, वैसे मिडगट इज कॉल्ड एज मिजेंटेरॉन, ठीक है, मिडगट मिजेंटेरॉन। अब जंक्शन, ये देखो जंक्शन बिटवीन, दिस जंक्शन बिटवीन फोरगट एंड मिडगट, यहाँ पे ये जो जंक्शन है फोरगट और मिडगट के बीच में, यहाँ पे देयर आर 6 to 8 tubules, they are called as hepatic caecae. And what is the role of these tubules? ये ट्यूब्यूल्स डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है कहाँ पे? फूड के ऊपर, ओके। तो दिस ट्यूब्स विल सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन फूड। तो फूड यहाँ से एंटर होगा, यहाँ पे फूड चीव होगा और यहाँ पे फूड के ऊपर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होगा, एंड देन फूड विल कम हियर। नाउ फूड एंटर्स इनटू मिडगट। फोरगट से फूड अभी कहाँ एंटर हुआ है? मिडगट में एंटर हुआ है। सो मिडगट जो है यहाँ पे कुछ ऐसे इतने बहुत सारे इसके सब पार्ट्स नहीं है, सिंपल मिडगट में एक ही पार्ट प्रेजेंट है। जो ये जो हमने ट्यूब्स देखी थी ना, ये 6 to 8 थी, बट यहाँ पे 100 to 300, ओके। यहाँ पे एक रिंग दिखेगी, 100 to 200 ऐसे ट्यूब्स रहेंगी, उसको बोलते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, येलो कलर्ड, ठीक है। मिडगट में ओनली देर आर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट, बट इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो रोल ऐसा है कि कॉकरोच का जो ब्लड होता है ना, वो उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। हमारे बॉडी में जो है उसको ब्लड बोलते हैं, बट कॉकरोच के बॉडी में जो ब्लड होता है उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो कॉकरोच का सपोज ये ब्लड है, this is blood of cockroach, this is called as hemolymph, ठीक है, ये याद रखना है, hemolymph। तो ये कॉकरोच का ब्लड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है, एक्सक्रेटरी वेस्ट। एक्सक्रेटरी मतलब अनवांटेड। ये ब्लड में, ये कॉकरोच का ब्लड है कंसीडर करो, ये ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। तो यहाँ पे कुछ एक्सक्रेटरी वेस्ट है, एक्सक्रेटरी मतलब अनवांटेड वेस्ट है, ओके।
अनवांटेड वेस्ट जो कॉकरोच के ब्लड में नहीं चाहिए, तो वो वेस्ट रिमूव करते हैं ये स्पेशल ट्यूब्यूल्स विच आर कॉल्ड एज मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। एक ऐसा रिंग होता है यहाँ पे, कहाँ पे, मिड गट या फिर मेसेंटेरॉन में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का, जो कॉकरोच के ब्लड में से वेस्ट को रिमूव करता है, वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके, और ब्लड को प्योर बना देता है, ऐसा भी बोल सकते हो। सो मिड गट में सिर्फ यही एक पार्ट है विच इज कॉल्ड एज मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। जैसे ये हिपैटिक सीके थे वो 6 to 8 थे, ये 100 to 300 छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जो क्या करती है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ट्यूब्यूल्स, ब्लड मीन्स हीमोलिम्फ में से एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करती है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को ब्लड में से बाहर निकालती है, दैट इज द रोल ऑफ मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। सो दिस पार्ट ऑफ द कॉकरोच एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड मिडगट या फिर मेसेंटेरॉन। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द कॉकरोच गट। नाउ लास्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, 1, 2, 3, थर्ड सेक्शन जो है एलिमेंट्री कैनाल का, वो थोड़ा ब्रॉड होता है इससे, मिडगट से। तो देखो ऐसे ड्रॉ करती हूँ मैं, ब्रॉड, ठीक है। तो उसमें जो पहला सेक्शन है इसको बोलते हैं इलियम, ओके, फिर दूसरे सेक्शन को बोलते हैं सीकम, एंड देन थर्ड सेक्शन को बोलते हैं रेक्टम, ठीक है, इलियम, सीकम, रेक्टम। और फिर ये बाहर ओपनिंग, वेस्ट फूड को रिमूव करने के लिए जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं एनस, ओके। एंड ये वाला जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, जो देखो मिड गट से ब्रॉड है थोड़ा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हाइंड गट, ओके, हाइंड गट, ठीक है। सो व्हाट आर द 3 एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट्स कौन से? फर्स्ट इज फोरगट और प्रोजेंटेरॉन, याद रख सकते हो, या फिर दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू शुड कीप इन माइंड फोरगट। देन सेकेंड पार्ट इज मिडगट या फिर मेसेंटेरॉन, एंड थर्ड पार्ट इज हाइंड गट, दिस पार्ट, एंड पार्ट। सो दिस कंप्लीट्स एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच। और जब हमने हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टडी किया था तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे, एलिमेंट्री कैनाल वाज सो लॉन्ग और बहुत सारे पार्ट्स थे, बट दिस इज सिंपल एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज कॉकरोच इज वेरी स्मॉल एनिमल, ओके। सो लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, फोरगट के जो पार्ट्स है, माउथ, फारिंक्स, इसोफेगस, क्रॉप, यहाँ से फूड मूव होगा, ओके, फूड विल एंटर फ्रॉम हियर एंड इट विल मूव लाइक दिस। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आएगा फूड, यहाँ पे बिकॉज ऑफ टीथ प्रेजेंट हियर, यहाँ पे फूड चीव होगा, राइट, क्रश होगा, फूड क्रश यहाँ होगा। देन ये जो हिपैटिक सीके है उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेगी। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हिपैटिक सीके? इट इज प्रेजेंट बिटवीन जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। पहले ये वाला पार्ट फोरगट है, इसके बाद वाला पार्ट क्या है, मिडगट है। तो हिपैटिक सीके जंक्शन पे प्रेजेंट है। नाउ इसके बाद फूड कहाँ आ गया, मिडगट में आ गया। यहाँ पे फूड में से मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो कौन सा वेस्ट रिमूव करेंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव कर देंगे, ओके। तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव कर देंगे। देन फूड विल कम हियर, दिस पार्ट विच इज कॉल्ड एज हाइंड गट। नाउ हाइंड गट के सब पार्ट्स इलियम, सीकम, रेक्टम, एंड लास्ट पार्ट इज एनस। सो फोरगट, midgut and hindgut. So these are the three regions of alimentary canal. So alimentary canal is divided into 3 regions: foregut, midgut and hindgut. और हर एक पार्ट के कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे क्रॉप स्टोर करता है फूड को, गिजार्ड चीव करता है फूड को, हिपैटिक सीके डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ब्लड में से एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करती है, एंड यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड कम हियर, and यहाँ से undigested food will go out from anus. So this was about alimentary canal. Now we will move on to next system. Now next system we are going to study in cockroach body, circulatory system or blood vascular system.
आई एम रिपीटिंग अगेन, सर्क्यूलेटरी सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, मतलब ब्लड से रिलेटेड वाला सिस्टम जो हमने ह्यूमंस में ऑलरेडी स्टडी किया है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ऑल। बट कॉकरोच की बॉडी में हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स जैसे हमारे बॉडी में होती है ना, वैसे नहीं रहेगी। तो सपोज दिस इज कॉकरोच एंड कॉकरोच के बॉडी में ब्लड वेसल्स, दिस इज ब्लड वेसल ना, हमारे बॉडी में जैसे ब्लड वेसल्स होती है, इसको आप आर्टरी बोलो या फिर यू कैन कॉल इट वेन, राइट, कैपिलरीज बोलो। एंड ऐसा सिस्टम जहां पे ब्लड फ्लोज इनटू, ब्लड जो है दैट फ्लोज इनटू अ ब्लड वेसल, ब्लड प्रॉपरली एक पाइपलाइन में से फ्लो हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, राइट। प्रॉपरली ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में से फ्लो हो रहा है। ब्लड वेसल कैन बी आर्टरी या फिर वेन, आर्टरी या फिर वेन हो सकती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम। नाउ यहाँ पे जो ब्लड सेल्स है ना, ये वाले, दे वी नो कि दे आर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, राइट। सो ये हुआ हमारे बॉडी में, राइट। हमारे बॉडी में दिस इज ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज और वेन्स एंड ब्लड कंटेन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्लस और एक चीज है प्लाज्मा ना, लिक्विड, हमने देखा है ना प्लाज्मा। तो ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो क्या क्या होता है ब्लड में, हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, राइट, करेक्ट। बट कॉकरोच की बॉडी में थिंग्स आर वेरी डिफरेंट देन दिस। सपोज दिस इज कॉकरोच, तो यहाँ पे उसके बॉडी में ओपन स्पेस है, क्या है, ओपन स्पेस, एंड दिस ओपन स्पेस इज कॉल्ड एज हीमोसील। यू पीपल वेरी वेल नो, सील का मतलब होता है कैविटी या स्पेस, एंड हीमो का यहाँ पे मतलब है ब्लड की कैविटी। तो ये खाली जगह, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, ओपन स्पेस है। एंड यहाँ पे जो ब्लड है ना, ब्लड ऐसे प्रेजेंट है, ओपन स्पेस में प्रेजेंट है। दिस ब्लड इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ, ओके। हीमोलिम्फ क्या है, उसका ब्लड है, ओके। और जैसे हमारे ब्लड में, हमारा जो ब्लड है इट वॉज मेड अप ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, वैसे कॉकरोच का जो ब्लड है ना वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नहीं है, इसके ब्लड के सेल्स को बोलते हैं हीमोसाइट्स प्लस प्लाज्मा, ओके। सो हम लोग इसका थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर। नाउ यहाँ पे what I will do, we will compare. So this is cockroach and suppose consider this is human being. तो डिफरेंस क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में कॉकरोच के बॉडी में और ह्यूमंस में। तो कॉकरोच के बॉडी में ये ओपन स्पेस है जिसको बोलते हैं हीमोसिल, whereas ह्यूमंस के बॉडी में देयर आर ब्लड वेसल्स, राइट, ब्लड वेसल्स जो क्या हो सकती है, आर्टरीज हो सकती है या फिर वेन्स हो सकती है मेनली, राइट। तो यहाँ पे ओपन स्पेस है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। नाउ इसके ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ और हमारे ब्लड को क्या बोलते हैं, ब्लड, ऑब्वियसली। नाउ इसका जो ब्लड है वो किससे बना है, हीमोसाइट्स और प्लाज्मा से बना है, वेयर एज ह्यूमंस का जो ब्लड है वो बना है आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट, ये हो गए ब्लड सेल्स, प्लस प्लाज्मा, राइट। ये तो हो गए छोटे छोटे डिफरेंसेस। ये ओपन स्पेस में है ब्लड, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में है, इसको हीमोलिम्फ बोलते हैं, इसके ब्लड को, हमारे ब्लड को ब्लड बोलते हैं। इसका जो ब्लड है वो बना है हीमोसाइट्स प्लस प्लाज्मा से और हमारा ब्लड इससे बना है। नाउ मेन डिफरेंस, this type of system where blood is open,
ब्लड इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेस। देखो ब्लड कहाँ प्रेजेंट है, ओपन स्पेस में प्रेजेंट है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है, क्योंकि ब्लड इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेस, देयर आर नो आर्टरीज एंड वेन्स इन द कॉकरोच बॉडी। वेयरएज ये ऐसा सिस्टम जहाँ पे ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स, ऐसा सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे बॉडी में क्लोज सिस्टम होता है जहाँ पे ब्लड फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स, वेयरएज कॉकरोच की बॉडी में इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड ओपन है इसके बॉडी में कहीं पे भी, इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना वो ब्लड में बात करते हैं, मतलब इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स ब्लड के बीच में रहेंगे। वेयरएज हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सेपरेट है ब्लड से, ब्लड पाइपलाइन में है, इंटरनल ऑर्गन्स अलग है। So that is the main difference. This is called as open and this is called as closed. Now हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में एक डिफरेंस देखा, ब्लड का देखा कि ब्लड हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी बना है, इसका हीमोसाइट से बना है कॉकरोच का, राइट। नाउ हार्ट जो होता है ना कॉकरोच का और हमारा हार्ट, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नाउ अगर ह्यूमन बीइंग, कंसीडर हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, it is, all of you know, it is 4 chambered, right? So upper chamber, lower chamber, upper 2 chambers and lower 2 chambers, जैसे right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. So we know कि humans have 4 chambers, right, in the heart. Heart has 4 chambers, but in case of cockroach के केस में heart के, let us see how many chambers are there. हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है थोरैक्स और एब्डोमेन में। तो सपोज दिस इज माउथ, ये हेड वाला पार्ट है, ओके, देन कम थोरैक्स, ये पार्ट थोरैक्स है एंड ये एब्डोमेन है, ओके। दिस यू नो, दिस इज एब्डोमेन एंड दिस इज थोरैक्स। थोरैक्स के कितने पार्ट्स है, 1 2 3, 1 2 3 एंड एब्डोमेन के 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स है, 10 सेक्शंस है, थोरैक्स में 3 सेक्शन है, हमको मालूम है। दिस इज थोरैक्स 1 2 3, ये एब्डोमेन यहाँ से शुरू हुआ, ओके। नाउ इसका जैसे हमारा हार्ट 4 चेम्बर्स है ना, कॉकरोच का हार्ट 13 चेम्बर्स है, 13 चेम्बर्स। और वो 13 चेम्बर्स कहाँ है, 3 थोरैक्स में, 1 2 3 और 10 एब्डोमेन में, 13 चेम्बर्स है ऐसे, 1 2 3, ये हार्ट के चेम्बर्स है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो ये दिस इज हार्ट ऑफ द कॉकरोच, दिस इज हार्ट। एंड हार्ट के कितने चेम्बर्स है, 13 चेम्बर्स है। 13 का डिवीजन हमने देखा, 3 जो है वो कौन से पार्ट में है, 3 चेम्बर थोरैक्स में है ये, और बाकी के जो 10 चेम्बर्स है वो कहाँ है, एब्डोमेन में है। मतलब हर एक सेगमेंट में एक एक चेम्बर है हार्ट का। तो कॉकरोच हैज 13 चेम्बर्स हार्ट, whereas we have 4 chambers heart। तो और एक हमने डिफरेंस देखा। सो नाउ ये जो हार्ट है, और जैसे हमारा भी हार्ट पंप करता है ब्लड, वैसे ये भी हार्ट का रोल क्या रहेगा, पंप ही करना रहेगा। तो दिस हार्ट इज अटैच्ड विथ मसल्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में ये जितने भी चेम्बर्स है ना उनके आजू बाजू में मसल्स है। जैसे हमारा हार्ट भी मसल्स से बना है ना, कार्डियक मसल्स से, तो ये जो जितने भी चेम्बर्स है उनको कंट्रैक्ट और रिलैक्स, हार्ट का काम क्या है, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना। तो हमारा हार्ट तो ऐसे कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, बट ये जो कॉकरोच के हार्ट के 13 चेम्बर्स है वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स ये मसल्स से करेंगे। यहाँ पे एलरी मसल्स है ये, ओके, देयर आर एलरी मसल्स, ये मसल्स को बोलते हैं
एलरी मसल्स, एंड यू नो कि मसल्स है तो फिर किस में हेल्प करेगी, मूवमेंट में हेल्प करेगी। किस चीज का मूवमेंट, तो ये मसल्स किससे अटैच है, हार्ट के चेम्बर से अटैच है। तो ये वाला चेम्बर को अगर मूव करना है, कंट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, तो ये मसल्स काम में आएगी। तो हर एक चेम्बर के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, फॉर ईच चेम्बर देयर आर एलरी मसल्स। तो मसल्स हार्ट को मूव करती है, ये याद रखो, कंट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो हार्ट मेड अप ऑफ 13 चेम्बर्स एंड हार्ट इज अटैच विथ, हार्ट के जो 13 चेम्बर्स है, 13 चेम्बर्स, दे आर अटैच विथ एलरी मसल्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में अटैच है। नाउ हम थोड़ा सा इसका हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। हार्ट ऑफ द कॉकरोच, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बताई नहीं, हार्ट का लोकेशन। जैसे हमारा हार्ट है वो कैसा वेंट्रल है, इस साइड में है, कॉकरोच का हार्ट डॉर्सल होता है, दैट इज अगेन द डिफरेंस। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। सपोज दिस इज द कॉकरोच, तो हार्ट ये साइड में प्रेजेंट है, बट हमारा हार्ट वेंट्रल यहाँ पे होता है। ओके, सो दिस इज अगेन वन मोर डिफरेंस, अवर हार्ट इज वेंट्रल व्हेन कॉकरोच हार्ट इज डॉर्सल, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है हार्ट। और अभी हमने देखा कि हार्ट के कितने चेम्बर्स है, 13 चेम्बर्स है, राइट, 13 चेम्बर्स। हार्ट को आप एक लॉन्ग ट्यूब भी बोल सकते हो, हार्ट लॉन्ग ट्यूब है, मस्क्यूलर है, और उसके जो चेम्बर्स है ना वो फनेल शेप्ड है, फनेल शेप्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चेम्बर ड्रॉ कर रही हूँ हार्ट का, दिस इज वन चेम्बर ऑफ द हार्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड फनेल शेप्ड चेम्बर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों साइड एक छोटा पाइप है, बोलो जिसको बोलेंगे ऑस्टिया। ये क्या है, हार्ट का चेम्बर है, हार्ट चेम्बर। अब देखो मैंने 13 ड्रॉ नहीं किया, आई हैव ड्रॉन 1, दोनों साइड में ये क्या है, ऑस्टिया, ठीक है। अब ऑस्टिया कनेक्टेड है साइनस से, किससे कनेक्ट है, साइनस। साइनस मतलब ओपन स्पेस, क्या है, ओपन स्पेस, ठीक है, क्लियर। ये भी ऑस्टिया किससे कनेक्टेड है, साइनस या फिर ओपन स्पेस, दोनों तरफ देखो, हार्ट है, हार्ट से कनेक्टेड क्या है, ऑस्टिया, ऑस्टिया से कनेक्टेड क्या है, ओपन स्पेस या फिर साइनस, यहाँ पे भी साइनस या फिर ओपन स्पेस। तो व्हाट हैपेंस, ब्लड जो है, ब्लड, इसके ब्लड को हम बोलेंगे हीमोलिम्फ, राइट, हीमोलिम्फ मतलब ब्लड। इट विल मूव फ्रॉम साइनस, साइनस से यहाँ जाएगा ऑस्टिया में, ऑस्टिया से हार्ट में जाएगा। ओके, इस तरफ से भी साइनस से ऑस्टिया में, ऑस्टिया से हार्ट में आएगा ब्लड। ओके, एंड फिर प्यूरिफाई होके यहाँ से वापस जाएगा ब्लड, ब्लड विल गो बैक टू, हार्ट से कहाँ जाएगा, ऑस्टिया, ऑस्टिया से साइनस। तो मैं थोड़ा सा भी ऑस्टिया को ब्रॉड ड्रॉ करती हूँ फॉर गेटिंग बेटर नॉलेज। ओके, सो आई एम ड्रॉइंग वन हार्ट चेम्बर, दिस इज हार्ट चेम्बर, फनेल शेप्ड है, इसको हमने फनेल शेप बोला, ऐसे 13 चेम्बर्स होते हैं। दिस हार्ट चेम्बर, दोनों साइड में इसके क्या है, दिस इज ऑस्टिया, दिस इज ऑस्टिया, राइट एंड लेफ्ट साइड, एंड दिस ऑस्टिया इज कनेक्टेड टू साइनसेस, साइनस मतलब ओपन स्पेस, दिस ऑस्टिया इज कनेक्टेड टू साइनस या फिर बॉडी ऑफ कॉकरोच। तो ब्लड यहाँ से एंटर होगा साइनस में से, पहले ब्लड कहाँ से, साइनस में से ऑस्टिया में गया, एंड ऑस्टिया से हार्ट में, राइट, हार्ट के चेम्बर में। यहाँ पे प्यूरिफाई होके देन इट विल कम फ्रॉम हार्ट चेम्बर टू ऑस्टिया, यहाँ पे था, यहाँ पे आएगा, एंड ऑस्टिया से साइनस में, राइट। सो इट इज क्लियर। सो blood from sinuses will come to ostia and ostia से heart में,
and return from here it will go to ostia and ostia to sinus. इतना ही याद रखना है. Okay, this diagram is for understanding. ये कुछ ये एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी या फिर बहुत कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये. दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. जो हार्ट की डायग्राम भी है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो ड्रॉ करना है. ये इतना समझना चाहिए, बाहर से ब्लड अंदर आता है हार्ट में फ्रॉम साइनस ऑस्टिया हार्ट, एंड हार्ट से फिर रिटर्न जाता है ऑस्टिया साइनस, राइट. सो ये याद रखना है, दिस इज साइनस, दिस इज ऑस्टिया. तो ब्लड साइनस ऑस्टिया हार्ट एंड हार्ट ऑस्टिया साइनस, ये रूट याद रखना है ब्लड का. एंड जो डायग्राम्स भी है 7.14, 7.15, 7.16 एंड हार्ट की भी जो डायग्राम बुक में दिया है वही सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं. ये दीज डायग्राम्स आर फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये क्लास वर्क कॉपी में ड्रॉ करो, बट डायग्राम कॉपी में जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम